सच्ची बाणी। दंडोत बंदन अनेक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। आंब की सदर कत मिटत आंबली खाए। पिता को प्यार ना परोसी पै पाइय। सागर की निध कत पाइय पोखर सै। दिन कर सार दीप जोत ना पुजाइय। इंदर बरखा समान पुजस ना कूप जल। चंदन सुवास ना पलास महकाइय। श्री गुरु दयाल की दया न आन देव में। खंड ब्रह्मंड उदय अस्त लो धाइय। श्री गुरु दयाल की दया न आन देव में। जाओ खंड ब्रह्मंड उदय अस्त लो धाइय। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहे सेवक जन मानै। परतख गुरु निस्तारे। सतगुर की जिसनु मत आवे सो सतगुर माहे समाना। ए बाणी जो जियो जानै तिस अंतर रवै हर नामा। ए बाणी जो जियो जानै तिस अंतर रवै हर नामा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी पावन पवित्र हजूरी दे अंदर सुभाईमान गुरु सवारे प्रेमी सतसंगी जनों, वडभागे हो सतगुरां दी पावन हजूरी विच सत संगत करन दा सुभाग आप जी नूं प्राप्त होया है। सतगुरां दी पावन बाणी नूं आपां पढ़ीए। सतगुरु किरपा करदे ने कि कोई बंदा अपने जोर नाल अपनी अकल नाल सियानप नाल संगत विच नहीं आ सकदा। ये ख्याल सतगुरां दी पावन बाणी दा है कि जदों वाहिगुरु जी आप किरपा करदे ने फिर गुरु दी संगत जीवन अंदर प्राप्त होंदी है।
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਐਸੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਬਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੋ ਤੁਮੇ ਮਿਲਾਇਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਤੋ ਸੁਣੀ ਤੁਮਾਰੀ ਬਾਣੀ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਦਾਤ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮੇਲੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਅੱਲੋ ਬੇਲੀ। ਕਿਰਪਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਣ ਗਾਣੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਸਖਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹ ਝੱਟ ਪੈਨ ਫੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਹੀ ਗਏ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਸਖਤ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੂਠਾ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦਾ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਮਕਸੂਦ ਗੁਣ ਗਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ 48 ਘੰਟੇ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਵੱਧ ਕਹਿ ਲਓ 50 ਘੰਟੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ 48 ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਕਿ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਕਰੋ, ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਭੋਗ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆਂ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਫੜੋ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 48 ਘੰਟੇ ਜਾਂ 49 ਘੰਟੇ ਪਾਠ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆਂ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕਰੇ, ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? ਭਾਵਨਾ ਕੇਵਲ ਇੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਜਾਵੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਪਾਠ ਸੁਣ ਲਵੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਪਰ ਸਮਾਪਤੀ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਤਰਸ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਭੋਗ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲਵੇ ਨਾ, ਵੀ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਕੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ,
जन्म अकारथ कीन। हुण ये शब्द जिहड़ा है सानू की कह रहा है, गुण नहीं गाए, जन्म की होया, बिरथा चला गया, सारा ही जिहड़ा है एवें बतीत हो गया। अगे प्रेरणा की कि जिवें मच्छी पारी नाल प्यार कर दिए, इस तरह तू वाहिगुरू नाल प्यार कर, वाहिगुरू दे गुण गा, वाहिगुरू परमात्मा दी सिफत सलाह कर। गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीन। कहो नानक हर भज मना, जह बिद जल को मीन। फिर सवाल उथे ही आके खड़ा हो गया। सत्संगत गुण गाने ने साडी जिंदगी का प्रयोजन है, नाम जपना साडी जिंदगी का प्रयोजन है। आ भाई साहब भाई मलकीत सिंह जी सत्कारयोग हुणे हुणे कीर्तन दे राही सानू ये प्रेरणा कर रहे सी कि नाम जप, नाम जपना ही तेरी जिंदगी का प्रयोजन है, नाम जपना ही तेरी जिंदगी का जिहड़ा है ना असली मनोरथ है। एक गल होर ध्यान विच रखियो, ये जिहड़े समागम ने एक घर घर अंदर धर्मशाल उस नूं समर्पित हन। जिहड़ा सत्संगत मैं बेनती करा, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों लहर चलाई गई है। फिर ध्यान देवियो, घर घर बाबा गाविए, वजन ताल मृदंग बाबा। हुण ये आपां पढ़दे हां पावन बाणी दे अंदर, धर्मशाल की है, सत्संगत धर्मशाल किनू किया जांदा है? बेशक बाबा नानक दे टैम आ जिथे आपा बैठे हाँ, इस अस्थान नू गुरुद्वारा किया जांदा सी। गुरुद्वारा इस अस्थान नू किया जांदा सी, पर उस वेले ज्यादा जिहड़ा सी ना वो शब्द प्रचलित होया धर्मशाल, धर्म दा घर, जिथे धर्म दी गल सानू समझाई जानी है, जिथे सानू धर्म दी गल समझ विच आनी है। क्योंकि एक है गुरुद्वारा भी धर्मशाल ते दूजा सत्संगत। बाबा नानक ने अपनी पावन बाणी दे अंदर ये भी गल समझाई है। आप रोज जप बाणी दा पाठ करदे आ, जपजी साहब जी दा पाठ आप जी रोजाना करदे हो। राती रुत्ती थित्ती वार, पवन पारी अग्नि पाताल, तिस वे धरती थाप रखी धर्मशाल। ये वखरी गल है कि इस धरती ते सत्संगत पाप भी हो रहे ने, ते अज तो नहीं, जदों दा संसार भरिया जिथे पुण्य हो रहा है उथे नाल पाप भी हो रहे ने। क्योंकि पापी पुन्नी नाल दी नाल ही तुरे आ रहे ने। इन्हां दा आरंभ इकट्ठे ही होया है। बारी नूं आपां पढ़िए, वैसे ये जिहड़ी धरती ना ये धर्मशाल है। इत्थे असीं धर्म कमान वास्ते आए हाँ। इत्थे असीं वाहिगुरू दी किरपा दे पात्र बन के जिहड़ा मकसद लैके मनुखा जीवन नूं आया पूरा करन वास्ते ये थां सानू मिली है, ये धरती सानू मिली है, ये धर्मशाल सानू मिली है। सतगुरु कृपा करे। मैं बेनती कर रहा सी, गुण गा रहे ने, नाम जपना है सानू सारियां नू। तुर की बाणी दे अंदर किसी नू ये नहीं कहा भी तू जट है या खतरी है या मुसलमान है या तू सिख है, कौन है, ईसाई है, नहीं। सत्संगत मैं कई बारी बेनती करया करदा हाँ, इत्थे सभे सांझी वाल सदायन वाली गल जिहड़ी ना उहनूं आपां प्रतख वेख सकदे हाँ। महाराज ने कदी आख्या बंदा, कदी आख्या सत्संगत प्राणी, कदी आख्या आदमी। होर तां गल कोई कही नहीं, आदमी प्राणी ते बंदा ये शब्द वरत्या है। बंदा मुसलमान भी हो सकता है, बंदा ईसाई भी हो सकता है, बंदा जैनी भी हो सकता है, बंदा जिहड़ा सत्संगत किसी भी धर्म नाल संबंधित हो सकता है। महाराज ने आख्या बंदे खोज दिल हर रोज, बंदे बंदगी इख्तियार। सानू बंदा कह के सत्संगत प्रेरणा कीती। प्राणी एको नाम ध्यावो, अपनी पत सेती कर जावो। प्राणी
तू आया लाहा लैन, लगा कितक फकड़े, सब मुकदी चली रैन। हम आदमी हाँ एकदमी, मोलत मोत न जाना, नानक बिनवै तिसे सरेवो, जाके जी पराना। प्राणी, बंदा या आदमी सानू पावन बाणी दे अंदर इन अखरां दे नाल संबोधन कीता है। मैं कई बारी बेनती करया करदा हा, भावें सतगुरु महाराज ने सबनां नूं सांझा उपदेश पावन बाणी दे अंदर दिता है, पर जदों सिख दी गल कीती ना, सिख नूं इह कह दिता, सिखा तेरा फर्ज, वैसे मैं बेनती करा, प्राणी होने दे नाते, बंदा होने दे नाते, आदमी होने दे नाते इस बंदे ने अमृत वेला संभालना है, अमृत वेले दी संभाल करनी है। पर खास तौर ते जदों सिख दी गल कीती, जिसने अपने नाम नाल सिख शब्द लाया होया है, उस नूं कह दिता, सिखा बाकी जो मर्जी अपने जीवन दे अंदर करन, प्रेरणा तो मैं उन्हां नूं भी करदा कि नाम जपो, अमृत वेले दी संभाल करो। पर सिखा जे तू अपने नाम नाल सिख शब्द वरतिया है, ते फिर जरूर ये गल चेते रखी, गुर सतगुर का जो सिख अखाए, सो भलके उठ हर नाम ध्यावै। तेरा फर्ज बनदा है कि पहला काम नाम जपन वाला तू अपने जीवन दे अंदर करना है। हुण मैं बेनती कर रहा सी, गल इथों आपां आरंभ करनी, गुण गा रहे हन, नाम जपना है। और ये किस स्कूल विचों सानू प्रेरणा मिलेगी, किस स्कूल विचों सानू इस गल दी जांच आवेगी, क्योंकि हर काम जिहड़ा ना वो सीखना पैंदा है, ते सीखण वास्ते अस्थान भी है। फिर बेनती करा, गुरु रामदास पातशाह ने बड़ी कृपा की, आखिया सत संगत सतगुर चाट साल है, जित हर गुण सिखा। गुरु की जिहड़ी संगत है ना, ये गुरु की पाठशाला है, गुरु का स्कूल है। इस स्कूल दे विच केवल गुण गान की गल जिहड़ी ना वो समझाई जाती। आ बच्चियां नूं थोड़ा जिहा समझाओ, ते मैं बेनती करांगा जिन्हां दे बच्चे ने जरूर अपनी गोद दे विच लवो। मैं ये भी नहीं कहांगा इन्हां नूं बाहर भजा दिओ, नहीं, क्योंकि इन्हां विचों ही बाबा दीप सिंह बनना है, इन्हां विचों ही भाई मनी सिंह बनना है, इन्हां विचों ही बाबा बुढ़ा जी बनने ने। बेनती करांगा इन्हां नूं बाहर नहीं भजाना, इन्हां नूं अपनी गलवकड़ी विच लैना है, अपने कोल बिठाना है, ते बिठा के इक्को गल कहनी। मैनू गल सत्कारयोग ज्ञानी मान सिंह चौर दी चेते आंदी, कई बारी उन्हां दीयां कैस्टां विच सुनन नूं मिलदी। कहंदे ने, वेखो बच्चा अरदासां करके लैंदे ने मां प्यो, बच्चा अरदासां कर करके प्राप्त करदे ने, पर किते दो भैनां दुनियावी गल्लां कर रहीआं होण ते बच्चा विच आके बोल पवे, चेता ही भुल जाता है भी किन्नी मुश्किल नाल ये बच्चा मिलिया, किन्नी मुश्किल नाल ये बच्चा प्राप्त किया है। बस झट कवेगी मां, मर जाना गल नहीं करन देंदा, मर जाना गल नहीं करन देंदा। ध्यान देविओ साध संगत, वो कहंदे ने भी एक मां दुनियावी गल्लां दुनियावी सहेली दे नाल कर रही है या किसी भैन दे नाल कर रही है, ते कोई बच्चा आके बोल पवे ते उस वेले कहा जाता है भी मर जाना गल नहीं करन देंदा। पर ध्यान देविओ, ब्रह्म ज्ञान की गल चल रही होवे, क्योंकि ये बाणी ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म की सानू जानकारी देंदी है। बाणी साध संगत सानू ब्रह्म दे नाल जोड़दी है। पर हैरानी की गल ये है, गुरबाणी का कीर्तन हो रहा होवे, गुरबाणी का पाठ हो रहा होवे, गुरबाणी की विचार हो रही होवे, किसी नूं हिम्मत नहीं पैंदी कि वह कवे भी बच्चे नूं चुप कराओ। कोई हिम्मत नहीं करता बच्चा चुप कर जावे। मेरी बेनती साध संगत, ये केवल आपा बचन पढ़ने नहीं, सत संगत कैसी जानी है, जिथे एको नाम वखानी है, एको नाम हुक्म है,
नानक सतगुर दिया बुझाए जियो। सतगुरु कृपा करन हाले मैं साथ संगत गल इत्थों ही आरंभ कीती है। अजे आरंभता हो रही है कि संगत विच असी किवें आए, सानू कौन लैके आया, असी संगत विच किवें बैठना है, इत्थों सानू की लाभ प्राप्त होंदा है। ये मैं आप जी दे बचन तां आप जी नाल सांझे कीते ने क्योंकि गुरु के कीर्तनीय साज भी बजाते ने, आप भी तीन जने होंदे ने ते उन्हां दी आवाज़ विच तुहाडी आवाज़ जांदी लोक। पर जदों प्रचारक सज्जन कोई लगदा है ना कथा करन वाला ते साथ संगत वो हुंदा है इकल्ला ते तुहानू जिहड़ी ना आवाज़ जिहड़ी तुहाडी सीधी डायरैक्ट आ रही ते मन दे उत्ते असर करेगी ते दुनियावी गल्लां हो रहीआं होण ते आपां साथ संगत वाहिगुरू दे घर दीआं गल्लां किवें करांगे, वाहिगुरू दे नाल किवें जुड़ांगे, वाहिगुरू दी किरपा दे पात्र किवें बनांगे। मैं एक गल होर कह के अगे जिहड़ा विषय है उस नूं छोड़ा है, ध्यान देविओ साथ संगत। गल आपां आम तौर ते साथ संगत कहने आ भी ये काम शुरू हो गया पाठी सिंघां वल्लों। बाबा बुढ़ा जी दे नाम ते ग्रंथी सभा बनी, भावें देहाती ते भावें शहरी। एक दो विंग बना दिते गए हैं, दो पार्ट कर दिते गए हैं, पर सारे वीर इकट्ठे होके ये हमला मार रहे ने। भाई गुरदास जी ने एक बड़ी सुंदर गल कही है, वो कहते ने वेखो दानी तुहानू दुनिया दे अंदर बड़े मिल जाणगे, पर एक गुरु का सिख दान करना चाहता है। आज जदों मैं आया इस नगर दे अंदर साथ संगत, भाई साहब मैनू दस रहे सी भी भाई मलकीत सिंह होरी अकैडमी इत्थे चला रहे ने, गुरबाणी दा कीर्तन सिखांदे ने, गुरबाणी दी संथ्या देंदे ने। मैं बेनती कर रहा हाँ, एक गुरु का सिख दान भी करना चाहता है पर उस कोल पैसा नहीं, उस कोल वस्त्र नहीं, उस कोल अन्न नहीं ते दानी बनना चाहता है, पर वो दान किवें करे। साथ संगत भाई साहब जी ने बड़ी सुंदर गल कही। भाई साहब कहते ने कोई बंदा 100 मकान सोने दे बना के दान कर देवे, उसका दान एक पासे ते कोई गुरु का प्यारा गुरु का सिख किसे नू गुरु दे शब्द नाल जोड़ देवे, उसका दान एक पासे। 100 मकान सोने दे दान करने वाला उसका मुकाबला नहीं कर सकता जेड़ा गुरु का सिख किसे नू गुरु दे शब्द नाल जोड़दा है। साथ संगत भाई साहब जी दे बचन हन, जैसे 7 मंजर कंचन के उसार देने तैसा पुन सिख को एक शब्द सिखाएगा। हुण इत्थे 7 7 नहीं, 7 गिनती दा 7 नहीं, इत्थे तुहाडे विचों बहुत सारे वीरां ने हिंदी पढ़ी होवेगी। हिंदी दे विच एक हुंदा सी 21 वाला शै, शशा जिन्हों आपां कहने आ, उन्होंने कहते हैं छत। छत जिहड़ा है ना 100 वास्ते वरत्या जाता है, 100 वास्ते वरत्या जाता है, सैकड़े वास्ते वरत्या जाता है। भाई साहब आखदे हन जैसे 7 मंदिर कंचन के उसार देने तैसा पुन सिख को एक शब्द सिखाएगा। ये जिहड़े समागम ने इन्हां दी आउटपुट की साथ संगत मैं बेनती करा, जे कोई गुरमुख प्यारा बारी नाल जुड़ जावे, गुरु दे शब्द नाल जुड़ जावे ते कीते होए समागम जिहड़े ने इस सकारथे हन। आपां ये नहीं शो करना किन्ने को लोग आए, किन्ने को लंगर छक गए, किन्नी को गोलक होई, नहीं आपां आउटपुट वेखनी है कि गुरु दे नाल प्यार किन्नियां कु दा बनिया है, किन्ने को गुरु दे नेड़े आए ने, किन्ने गुरु की कृपा दे पात्र बने ने। ये गल ध्यान विच रखनी है। सतगुरु कृपा करन आपां साथ संगत भाई साहब वल्लों ये जिहड़े ना प्रोग्राम सारे जो दस्या गया है, क्योंकि इस दे अंदर गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह दे पहले प्रकाश दिहाड़े नूं समर्पित जिहड़े ने ना वो सारे समागम कीते जा रहे हैं। मैं बेनती कर रहा हाँ, बाबे नानक ने या गाविया है ते या सुनिया है, दो ही गल्लां ने। बारी नूं भी आपां पढ़िए, आयो पढ़न सुनन को बानी, दो गल्लां, आयो पढ़न सुनन को बानी। बाबे ने कोई जप नहीं कीता, कोई तप नहीं कीता, बाबे ने की कीता, केवल आख्या गाविया
सुनिए मन रखिए भाओ। बस आ गल, गाविए सुनिए मन रखिए भाओ। ये मन विच प्यार, इस नाल जो कुछ वाहिगुरु परमात्मा नू गाउणा है ते वाहिगुरु परमात्मा नू सुनना है। क्योंकि सत्संगत जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। प्रेम भगतियां तो बड़ियां ने, नौदा भगती की गल पावन बाणी दे अंदर भी की गई है, पर सत्संगत प्रेमा भगती नू था हर पासे दिती गई है। प्रेमा भगती नू ही था जिहड़ी है वो गुरु साहब ने बाणी अंदर दिती है। भाई साहब ने भी ये वही गल कही है ना, भगत वशल सुन ओत हो निराश हृदय। ध्यान देवियो, भगत वशल सुन होत हो निराश हृदय। जदों मैं सुनदा रब जी तू भगती नू प्यार करन वाला है, मेरे अंदर निराशा आ जाती। पर जदों मैं सुनना तू पततां दा उधार करन वाला है, ते फिर मेरे अंदर भी आस बच जाती। बाबे ने केवल गाविया नहीं, बाबे ने सत्संगत जो कुछ गाविया वाहिगुरु परमात्मा की कृपा नाल बाबे ने ये मान नहीं किया। इहो ही गल कही न, जैसी मैं आवे खसम की बानी तैसड़ा करी ज्ञान वे ला लो। हाउ आपो बोल न जानदा, मैं कहा सब हुक्माओ जियो। आप ये भी बचन जन्म साखी दे पढ़ते हैं। जदों सतगुरु गांदे सी या गान लगते सी ते भाई मरदाना जी ने एको गल कहंदे सी ना, आखदे सी भाई मरदाना जी नू, चुक रबाब वजार रबाब काई खुदा दी सिफत करिए। सत्संगत बाबे ने जो कुछ गाया है, की गाविया है, सतगुरु महाराज ने आप पावन बाणी दे अंदर कृपा की है। महाराज जी दे बचन ने, जन नानक बोले ब्रह्म विचार। बाबे ने दूजी गल नहीं की। इहो गल ही भगत कबीर साहब जी ने कही, लोग जाने ये गीत है, ये तो ब्रह्म विचार, ये ब्रह्म दी विचार है। जन नानक बोले ब्रह्म विचार, जो सुने कमावे सो उतरे पार। जिहड़ा सुनेगा ते सुनन तो बाद रोक नहीं जाएगा, कमावेगा, इसनू अपने जीवन दे अंदर कमावेगा। हुण सत्संगत एक एक पंक्ति जीवन नू सुवारदी, एक एक अखर साडे जीवन दा उधार करदा है। मैनू याद है दास मॉडल टाउन एक्सटेंशन गुरुद्वारे लुधियाने लगभग 87 विच आया सी। 11 विच मैं सचखंड श्री हरमंदर साहब आया। इस तो पहला उत्थे सेवा चलती रही। हुण उत्थे में एक हॉस्पिटल है, गुरु तेग बहादुर चैरिटेबल। मैं उस हॉस्पिटल के अंदर गया, मेरा मित्र सी डॉक्टर परूथी। मैं उन्होंने मिलिया, दवाई लई, बाहर निकलिया। एक मेजर साहब सन सरदार गुरबख्श सिंह जी, मॉडल टाउन के अंदर ही रहिंदे सन। बिल्कुल जो मैं बाहर निकलिया तो मैनू मिल गए। तो मैं उन्होंने बेनती की, मेजर साहब किवें आए हो? कहन लगे डॉक्टर परूथी नू मिलना है। तो मैं उन्होंने कहा भी आओ मैं तुहाडे नाल चलदा, मैं दिखा देना। मेरे मित्र ने उन्होंने पंक्ति पढ़ी, हक पराया नानका उस सूवर उस गाय, उस सूवर उस गाय। तो मैं पंक्ति सुन के हैरान हो गया। मैं क्या भी ये पंक्ति क्यों पढ़ी जे? कहने लगे ज्ञानी जी तुहानू पता है ये हॉस्पिटल का नाम की? मैं क्या जी चैरिटेबल गुरु तेग बहादुर जी के नां ते आ। कहन लगे इत्थे कौन आए ने आ जिहड़े बैठे ने सारे बाहर बेंचां ते? मैं क्या जी ये लोग डॉक्टर साहब नूं मिलण वास्ते आए ने। कहन लगा नहीं ज्ञानी जी ये वो लोग ने
ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋੜਵੰਦ ਸਵੇਰ ਦੇ ਆਪਣੀ ਪਰਚੀ ਕਟਾ ਕੇ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੂੰ ਵਿਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬਹਿੰਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫੜ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਵਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਸਕੋਗੇ ਨਾ ਮੈਂ ਰੋਕ ਸਕਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਦੇਵਿਓ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ, ਜੋ ਸੁਨੇ ਕਮਾਵੇ ਸੋ ਉਤਰੇ ਪਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਗਾ ਕਮਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਆ 78 ਤੋਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ ਪੜ ਕੇ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਦੀ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਆਰਦੀ। ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਰੱਬ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਪੀਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੇਰੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਵੀਂ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕਲਾਮ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਬਸ਼ਰ ਹਾਫੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦੇਵੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁਣੀ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਲਗਾਤਾਰ 2 ਦਿਨ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਪਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ, ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਗਿਆ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਬਸ਼ਰ ਹਾਫੀ ਨੂੰ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕਲਾਮ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਬਦੁੱਲੇ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਪੀਰ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਾਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪੀਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੀਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ ਪੀਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਤੇ ਕਬਾਬੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ, 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕਬਾਬੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਵਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਸ਼ਰਾਬਖਾਨੇ 'ਚ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬਖਾਨੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਸ਼ਰ ਹਾਫੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਪੀਰ ਨੂੰ ਕਿ ਪੀਰ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ? ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਦੇਵਿਓ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ, ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਬਣਦੀ। ਵੀ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾਠੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਵਿਓ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰੇਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ? ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ? ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਸਤੂਵਾਨੇ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ
किसी जट ने जिमीदार ने मशकरी की, कहन लगे बाबा जी मौसम बड़ा वधिया है, आओ बैठ के रल के पीए। ते बाबा जी ने गुस्सा नहीं मनाया, बाबा जी ने कोई उन्होंने जवाब नहीं दिता, बल्कि बड़े प्यार नाल कहा भले मानसा ये काम तुरदियां फिरदियां नहीं होंदे, किते बह के करांगे। फिर ध्यान दे, कहन लगे ये काम तुरदियां फिरदियां नहीं, ये आपां किते बह के करांगे। उस बंदे ने सोचा भी बाबा मेरी गल नाल सहमत हो गया, बाबा मेरी गल नाल सहमत हो गया। आ कई बारी बाबियां नूं भी असी लोग मशकरियां करदे आ, कोई नहीं वेखदा, बाबा जी कर लो। मैं बेनती करांगा जे आप कुराए पै होए हां ते जिहड़ा सीधे राह जा रहा उहनूं कुराए ना पाओ, बल्कि राह ते चलन दिओ। पर मैं कई बारी वेख्या साध संगत लोग मशकरियां करते ने, नहीं बाज आंदे। बाबा अतर सिंह नूं कहन लगे महाराज जी आओ समा है शकीए, ते बाबा जी कहन लगे कमलिया ये काम तुरदिया फिरदा नहीं होंदा, बह के करांगे। उन्हें सोचा भी बाबा जी मेरी गल नाल सहमत ने, नाल लै लिया, तुर पै। कहंदे ने छां आई ते छां दे थल्ले बाबा जी बैठ के ने, नाल पानी चल रहा सी, जिवें खाल चलदे न इस तरह पानी चल रहा सी। ते बाबा जी ने कहा भी आओ बैठो, आपां इत्थे हुण बह के जिहड़ा ना जिहड़ा तू काम कह रहा कर दे। हाँ बैठ गए। बाबा जी कहन लगे पा प्याले विच, ते बाबा जी ने साध संगत जदों किया ते उस बंदे ने प्याले विच शराब पा दिती। ते बाबा जी ने अपने हथी चुक के कोल कुत्ता बैठा होया सी, कोल कुत्ता बैठा होया सी, वो शराब दा प्याला कुत्ते दे अगे रख दिता। ध्यान देविओ, कुत्ते ने उस प्याले नूं सूंघिया तक भी नहीं। बाबा जी कहन लगे तू 84 लाख दा सरदार है, तैनूं 84 लाख जूना दे विच भटकन तो बाद ये देई प्राप्त होई है, ते तू दस भी जिस चीज नूं कुत्ता नहीं सूंघदा, कुत्ता नहीं पींदा, तो बंदा होके उन्होंने पीना। साध संगत बारी दे अंदर जित पीता मत दूर होए, बरल पवै विच आए, अपना पराया न पछाणे, खसमों धक्के खाए। महाराज आखदे ने इहो जिहा झूठा मद नशा अपने जीवन दे अंदर धारण ना कर, इहो जिहा नशा अपने जीवन दे अंदर धारण ना कर। अब्दुल्ला पीर उस बंदे दे नाल है, शराब खाने दे विच बशर हाफी नूं मिलिया, ते बशर हाफी ने मजाक किया, मशकरी की, कहन लगा अब्दुल्ला पीर नूं भी तुसी पीर जी इत्थे किवें? ते अब्दुल्ला पीर बड़े प्यार नाल कहंदा है भी तेरे कारण मैनूं इत्थे आना पिया है, तेरे कारण मैनूं इत्थे आना पिया है, नहीं मैं इहो जिहियां थावां दे पिछों भी नहीं लंघदा, अंदर आना ते इक पासे होया। अब्दुल्ला पीर कहंदा तेरे कारण मैनूं इत्थे आना पिया है। ते साध संगत बशर हाफी दे कान खड़े हो गए, कहन लगा मेरी खातर तैनूं इस थां ते आना पिया? ते कहंदे ने उस वेले कहन लगा दस, कहन लगा रब दा सनेहा तेरे वास्ते लैके आया, रब दे घर दा सनेहा तेरे वास्ते लैके आया। कहन लगा दस मैनूं कि सनेहा की है? कहन लगे रब ने इक्को गल कही भी बशर हाफी नूं जाके कवी तू मेरा कलाम उच्चा कीता, मैं तैनूं उच्चा कीता। ते उस वेले या अल्लाह या खुदा ये बचन कहंदा कहंदा शराब खाने विचों सब कुछ छड्ड के बशर हाफी भजिया। हुण बशर हाफी अगे अगे, अब्दुल्ला मगर मगर। कहन लगा जिन्हें सुनिया दिता उन्हें भी गल खोली नहीं, ते जिन्हों दिता है उन्हें भी गल खोली नहीं। वह भी कन्नां नूं हथ लांदा पिया ते या खुदा या अल्लाह कहंदा कहंदा बाहर भजिया जा रहा है। कहन लगा भले मानसा मेरे भी पल्ले कुछ पा, स्नेहा की है, इस दे विच गल की है? ते उस वेले बशर हाफी ने एक गल कही, कहन लगा पीर जी
मैं शराब खाने दे विचों शराब पी के अपने घर वल जा रहा सी ते कुरान दा अद्धा पतरा किसी ने सुटिया होया सी ते वो अद्धा पतरा जदों मेरी निगाह पिया ते कहंदा भी मैं अपने हाथ साफ कीते, पतरा चुकिया, सिर ते रख लिया, अपने घर विच आके जेड़ी मेरे घर दे अंदर उच्ची थां सी, चंगी थां सी, मैं वो कुरान दा अद्धा पतरा जिहड़ा ना उथे टिका दिता। ते कहंदा अब्दुल्ला नूं जे रब मेरे इन्ने कर्म ते इन्ना खुश होया है, मैनू उच्चा चुकदा है, ते जदों मैं रब दी इबादत विच लगांगा, रब दी बंदगी विच लगांगा, ते रब मेरे नाल किन्ना प्यार करेगा, रब मेरे उत्ते किन्नी रहमत करेगा। प्यारिओ, तुर्की बानी कवि निहाल सिंह जी ने बड़ा सुंदर लिखिया है। वो कहंदा भी किसी नूं भरोसा जमीन दा होवेगा, किसी नूं जहाजां दी चाकरी दा होवेगा, किसी नूं बादशाह शाह जिहड़े मित्र ने वड्डे वड्डे इन्हां दा होवेगा, किसी नूं अपने घर दे जिहड़े ना वड्डे वड्डे काम उन्हां दा मान होवेगा, पर नाल ही कहंदे ने किसी नूं देवबानी संस्कृत या फारसी दा मान होवेगा, किसी नूं अपनी संतगिरी दा मजाज होवेगा, किसी नूं अपनी चलाकी हुशियारी जोर दा मान होवेगा, पर कहंदे ने मैनू केवल ते केवल मान है किस उत्ते? गुरु ग्रंथ साहिब जी उत्ते। भाई साहब आखदे ने कवि निहाल सिंह, काहों को परोसो जमीन को जमाने बीच, काहों को परोसो जोर चाकरी जहाज पे, काहों को परोसो शाह पाशाह भारी मीत, काहों को परोसो कुटुंबी करे काज पे, काहों को परोसो देवबानी और फारसी को, काहों को परोसो संतगिरी की मजाज पे, काहों को परोसो जोर चाकरी चलाकी चोख, मौको तो परोसो एक ग्रंथ महाराज पे। ते साध संगत प्यारिओ, गुरु नानक पातशाह जी ने जो कुछ लिखिया उन्होंने अपने कोल संभालिया। पुछन फोल किताब नूं वड्डा हिंदू के मुसलमानोई, आसा हथ किताब कछ। बाबा हर वेले अपनी बाणी जो बोलदा सी, अकाल पुरख दी किरपा नाल उन्होंने अपने को लिखदा सी, अपने को रखदा सी। ते फिर ध्यान देविओ, जिन्ने भगतां दी बाणी न बाबा जी उन्हां दे अस्थानां तो जिहड़े पहलां हो चुके ने कई सदियां, उन्हां दे जानशीन कोलों ते जिहड़े मौजूदा सन उन्हां दे अपने कोलों बाबा जी बाणी लैके आए। ते जदों साध संगत घालना थाए पई भाई लहना जी दी, मर्दां दी तरह उन्होंने घाल घाली, मालिक दे दर ते कबूल हो गए, क्योंकि पे कबूल खसम नाल जां घाल मर्दी घाली, मर्दां वाली घाल घाली। बाबा त्रुठिया ते बाबे ने साध संगत अपना आप गुरु अंगद देव जी महाराज अंदर टिकाया ते भाई लहने तो गुरु अंगद देव जी बना दिता। पर जदों उन्हां नूं तोरिया, नाल ही कह दिता खंडूर साहब जाओ, आ पोथी बाणी दे ते नाल कमर कसा सेवा अपने जीवन दे अंदर करो। गुरु अंगद देव जी महाराज, क्योंकि साध संगत तित महल जो शब्द जो होवा सो पोथी गुरु अंगद जोग मिली। जन्म साखी दे बचन ने भी गुरु महाराज ने सारी बारी भगतां दी बाणी भाई साहब भाई लहना जी जिन्हां नूं गुरु अंगद देव जी बनाया उन्हां दे हवाले कर दिते। सतगुरां ने शब्द नहीं लिखे, अष्टपदिया नहीं लिखिया, केवल श्लोक जिहड़े वारां दे अंदर हन वो उन्हां ने नाल दर्ज कीते। एक खजाना गुरु अमरदास पातशाह जी तक पहुंचा। फिर गुरु अमरदास जी ने अपनी बारी रच के साध संगत, क्योंकि 19 रागां दे अंदर गुरु नानक पातशाह जी ने बाणी उचारण की, 17 रागां दे अंदर गुरु अमरदास पातशाह जी ने बाणी उचारण की, 30 रागां दे अंदर गुरु रामदास पातशाह जी ने बाणी उचारण की, ते 30 रागां दे अंदर ही गुरु अर्जन देव जी महाराज ने बाणी उचारण की। जिहड़ा 31वां राग है ये है सह संगत जैजावंती राग, गुरु तेग बहादुर जी महाराज दा। ये बाद विच
जदों भाई मनी सिंह पासों गुरु महाराज ने बानी लिखवाई, जिन्हों आपां दमदमा साहब वाली बीड़ कहंदे हाँ, उस दे अंदर ये राग भी ते गुरु महाराज की बारी जिहड़ी है वो दर्ज की गई। ते सतगुरु महाराज ने तुरुठ के किरपा करके अखीर वेले अपनी रसना तो ये बचन कहे सन, साध संगत पहला पोथी परमेश्वर का थान, बेशक बाणी दे अंदर शब्द गुरु सुरत धुन चेला वाली गल आपा पढ़ बाणी विच बाणी अमृत सारे, गुरु बाणी कहे सेवक जन मानै, पर तख गुरु निस्तारे। सतगुरां ने बाणी नो गुरु दा दर्जा दिता, पर गुरु शब्द जिहड़ा है वो केवल ते केवल गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जदों ज्योति जो समान लगे तां उस वेले उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दा पोथी परमेश्वर के थान दे रूप विच प्रकाश करवाया। ते साध संगत सतगुरां ने नमस्कार कीती, जेड़े बचन कहे उन्होंने ज्ञानी ज्ञान सिंह जी ने इयों अंकित किया है, आज्ञा भई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की दे, जो प्रभु को मिल बोच है खोज शब्द मैं ले। साध संगत बड़े लोग रब नाल मिलदियां तुहानू गल्लां करनगे या रब नाल साध संगत मिलाप दी गल करनगे, पर मैं एक बेनती कर देवा, असी गृहस्थी आ, असी संसारी आ। सानू महाराज ने ये गल समझाई है, जैसे जल में कमल निरालम मुरगाई नैशाने, सुरत शब्द पव सागर तरिए नानक नाम वखाने। अखीर विच मैं बेनती करांगा, प्रिंसीपल सतबीर सिंह ने बड़ी सुंदर गल कही। वो कहते ने भी सारी गुरबाणी नूं जे आपां पढ़ना चाहिए, विचारना चाहिए, तो हो सकता कई जन्म लग जान, सानू समझ विच ना आवे, पर दो अखर जिहड़े ने ना इन्हां नूं समझण दा यतन करियो। पहला की है एक, ते अखीर विच की है पसारो, क्योंकि जिहड़ी राग माला है उस अंदर महाराज ने रागां दा वेरवा दिता है, रागां बारे जानकारी दिती है। ध्यान देवियो, पसारो ते एक। हुण हर बंदा ये सोचदा भी बाणी नाल किवें जुड़ीए, एक नाल किवें जुड़ीए, एक नाल किवें असीं अपना जिहड़ा संबंध जोड़ीए। वो कहंदे ने एक ते पसारो, इन्हां दो अखरां नूं ध्यान विच रखियो। एक नाल जुड़ना है, पसारे नूं छड्डना नहीं, पसारे नाल जुड़ना है, एक नूं छड्डना नहीं, क्योंकि दो अखर एक पहला ते पसारो मगरों। पहला असी एक नाल जुड़िया, पर पसारे दा त्याग नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे धर्म जिन्हां ने समाज नूं बड़ा कुछ दिता, अपनी अपनी थां ते सारे धर्म चंगे ने। तो मैं बेनती करा, प्रचारक सज्जन बैठे हुए ने, ग्रंथी सिंह बैठे हुए ने, सारे गुरु घरां दे अंदर सेवा करते हैं। प्यारिओ एक गल ध्यान विच रखियो, 10 पातशाहियां दा आपां जीवन पढ़ीए, इतिहास पढ़ीए, बारी नूं पढ़ीए, किते भी सतगुरु महाराज ने किसे दे धर्म नूं निंदिया नहीं जी, किसे दे धर्म नूं माड़ा नहीं किया। मेरी एक गल याद है, मैं यूके दे विच गुरु हरराय जी महाराज दा गुरुद्वारा डंबेली वालियां दा, उत्थे कथा कर रहा सी, ते एक लेख लिखिया सोहन सिंह सीतल ने, ढाडी साहब ने। वो है सब ते वड्डा सतगुरु नानक, सब ते वड्डा सतगुरु नानक। उन्होंने लेख लिखिया, मैं वो लेख पढ़िया ते तकरीबन सारा जिहड़ा असीं संगत दे विच सुना दिता। उस विच एक शंभुक ऋषि का सिर वड्डण वाली गल सी, जिहड़ी रामचंद्र जी ने वड्डिया। ये आम इतिहास विच पढ़दे आ। ते एक गल आई भी यहूदियां दी बीबी जिहड़ी सी ना, वो आई ईसाई मत दे आगू ईसा जी दे कोल, आखन लगी अरदास कर दिओ, मेरी बच्ची बीमार है। यहूदी बीबी, वो सोहन सिंह सीतल ने लिखिया है,
कि ईसा जी कहन लगे भी मैं अपने बच्चों की रोटी कुत्तियां नूं नहीं पानी, अपने बच्चों की रोटी कुत्तियां नूं नहीं पानी। बीबी इन्नी निमरता दे विच सी, कहन लगी भी कई बारी कुत्तियां दे मूँह विच पै जांदा ओह भोरा जिहड़ा बच्चों के कोलों डिग पैंदा है, जिहड़ा बच्चों के कोलों डिग पैंदा है कुत्ते ओह भोरा अपने मूँह विच पा लैंदे ने, उहनूं चुक के खा लैंदे ने। बीबी दे कहण दा भाव ये सी कि ईसा जी जे तुसीं कुत्ते ही समझदे हो तो कुत्ते समझ के खैर पा दिओ, कुत्ते समझ के ही खैर पा दिओ। खैर उन्हें ये गल नहीं मन्नी हैगी। ये दो कहानियां मैं सुनाइयां कथा दे विच, ते बाकी बाबा नानक जी दीयां जिहड़ियां गल्लां ने ना वो सारियां मैं सुना के अपना टाइम जिहड़ा है वो पूरा कर लिया। पर जदों मैं कमरे विच आया, एक सज्जन बड़े सियाने सी, संगत विच बड़े स्रोते हुंदे ने, बड़े सियाने सियाने वीर बैठे होंदे जिन्हां कई स्रोते प्रचारकां नूं सुनिया हुंदा है, विद्वानां नूं सुनिया हुंदा है। मेरे कमरे च आ गए, फतेह बुलाई, कहण लगे ज्ञानी जी कथा बड़ी वधिया कीती। पर नाल ही उन्होंने सवाल कर दिता कि तुहाडा मन मनदा कि राम जी ने काम किया होवेगा, तुहाडा मन मनदा कि ईसा जी ने काम किया होवेगा। ते मैं जिवें प्रचारकों का काम है अपने हिसाब नाल अपनी दलील नाल उन्होंने कट्टना चाहता सी। मैं उन्होंने बेनती की भी मैं उन्होंने धर्म ग्रंथां विच पढ़िया ते धर्म ग्रंथां विच गल अंकित है। हस के कहन लगे ज्ञानी जी जो कुछ साडे ग्रंथां विच लिखिया सारा कुछ मानदे हो? मेरे उत्ते सवाल सी। अगला कहन लगे जो कुछ लिखिया मानदे हो? मैं आख्या नहीं, असीं अंडरलाइन करदे हां, नहीं असीं मनदे। कहन लगे फिर ऐसा कुछ हो सकता है? ते नाल ही उन्होंने एक गल कही, कहन लगे ज्ञानी जी बाबा नानक जी नूं वडियाण वास्ते किसी नूं छोटा करके बाबा नानक नूं वड्डा करके नहीं दसना, बल्कि बाबा नानक दी बाणी नूं पढ़ो ते बाबा नानक दा जिहड़ा जीवन ओनूं पढ़ो। बाबा आप ही वड्डा है, बाबे नूं किसी नूं छोटा करके वड्डा करन दी गल नहीं। ते मैं बेनती कर देवां बाबा नानक ने सारी जिंदगी उन्हां दी बाणी नूं पढ़ लो, उन्हां ने किसी भी धर्म नूं माड़ा नहीं किया, हाँ किसी धार्मिक आगू नूं माड़ा नहीं किया। जे माड़ा किया है तो जिहड़े धर्म का प्रचार करने वाले सी उन्हां नूं किया। फिर ध्यान देविओ, बाणी नूं पढ़ो, इतिहास नूं पढ़ो, तुहानूं किते नहीं मिलेगा कि गुरु साहिबान ने किसी दे धर्म नूं या किसी धार्मिक आगू नूं माड़ा किया होवे। हाँ जे किसी प्रचारक दे विच जिहड़ा धर्म प्रचारन वाला है उस विच कमी है ते ओनू कह दिता कादी कूड़ बोल मल खाए, बामन नावे जियां काए, जोगी जुगत न जाने अंध, तीने उजाड़े का बंद। ये गल बाबा जी ने कह दी। बाबा जी की बाणी नूं आपां पढ़िए। ते मैं बेनती कर रहा हाँ भाई गुरु नानक साडे उत्ते किरपा करे, सतगुरु किरपा करन, असी गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दी पावन बाणी नूं पढ़ना, एक नाल भी जुड़ना, पसारे नाल भी जुड़ना, पसारे नाल जुड़ना, एक नाल जुड़े रहना। ते फिर की होवेगा? ये लोक सुखीए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे माली मेले वाली अवस्था साडे जीवन दे अंदर भी बन जाएगी। साथ संगत इन्ने कु बचन आप जी दे नाल सांझे करदा होया विचारां नूं संकोचदा हा। सतगुरां दी पावन बाणी दे नाल जुड़ो, सतगुरां दी पावन बाणी नूं पढ़ो, बाणी नूं पढ़ के बाणा जीवन दे अंदर धारण करो, ग्रंथ पंथ नाल जुड़ के अपने जीवन नूं सफल करन दा यत्न करो। लोक नाल परलोक सौरेगा। भाई साहब जी हुणे हुणे बच्चियां दी गल तुहाडे नाल सांझी करके गए ने, ते मैं कई बारी बेनती करया करदा सा संगत बच्चियां दा टिफन भी जिहड़ा है ना कई बारी बस विच फड़ांदिया गालो गलोच करदिया ही लै तेरा स्यापा कीता या फड़ आ खा लवीं। पर मैं बेनती करा, मैं एक आम तौर ते जिहड़ी ना मावां नाल भैणां नाल गल सांझी करया करदा। भाई वीर सिंह जी सफर विच ने, मां ने तुरन लग्या 4 प्रशादे तैयार करके दे दिते। भाई वीर सिंह जी की सत्कारयोग माता ने 4 प्रशादे तैयार करके दे दिते। जदों सफर विच ने
एक पादरी मिल गया जिहड़ा भाई साहब जी दे नाल सफ़र कर रहा है। तो भाई साहब ने कहा भी लंगर छकोगे, भोजन छकोगे? पादरी ने हाँ विच जवाब दिता। 4 प्रशादे सी, 2 भाई साहब ने पादरी नूं दे दिते, 2 आप अपने कोल रख लै। हुण जदों छकन लगे ने ते पहली गराही जदों पादरी ने अपने मूँह विच पाई ते नाल ही सवाल किया कि प्रशादा माँ जी ने तैयार किया है? ध्यान देविओ, आखिया माँ जी ने तैयार किया है। ते भाई साहब कहन लगे ठीक नहीं बनिया। भाई साहब नूं सी शायद कोई शिकायत करेगा। कहन लगे ठीक नहीं बनिया। कहन लगे नहीं भाई साहब, पहली गराही अंदर गई है ते सिमरन दा स्वाद आया। पहली गराही अंदर गई है ते सिमरन दा स्वाद आया है। भाई साहब दे माता जी जुड़े हुए सन ते जुड़े मन दे नाल उह साध संगत लंगर तैयार करदे सन। अज तो पहला मतावा नूं तुसीं वेख लो, जे आटा गुनना है वाहिगुरू, जे भांडे मांजने ने वाहिगुरू। भाई बन्नों नूं तां एक वारी कह ही दिता सी ना, आ जिन्हां ने गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दी जिल्द बनवाई सी, उन्हां दी भीड़ भी एक सिख इतिहास दे अंदर है, बेशक प्रचलित नहीं। पर भाई बन्नों जी जिहड़े ने ना, उन्हां दे कोल आके बादरूआं बेनती करदियां ने, कहण लगे भाई साहब जी तुहाडे घर दी असीं स्वाह भी नहीं खा सकदे। क्यों? ध्यान देविओ, तुहाडे घर दी स्वाह भी नहीं खा सकदे। भाई साहब ने क्या क्यों? कहन लगे तुहाडे घर वाली भांडे मांजदी भी वाहिगुरू 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 जिहड़ा ना ये शब्द रटन कीती जांदी है। मैं बेनती करांगा बारी नाल आप जुड़ो ते जिवें भाई साहब कह रहे सी, जिहड़े मुढ़ले सिद्धांत ने ना सिੱਖੀ दे, इन्हां नूं आपां बच्चिआं नाल साझा करिए। कई वारी तां साध संगत बच्चिआं दी गल छड्डो, बजुर्गां नूं, भैणां नूं, मतावां नूं 5 प्यारिਆਂ ਦੇ ਨਾਂ नहीं आते, 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ नाम नहीं आते, 10 गुरु साहिबान के नाम नहीं आते। तो जे पुछ लिया जाए किन्ने गुरुआं की बाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर है, आ पिछे जो तुहानूं पता होवेगा ना, एक सोशल मीडिया ते गल आ रही सी, पुछया भी गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर किन्ने गुरुआं की बाणी, तो जवाब मिलिया 10 गुरु साहिबान की बाणी। ध्यान देविओ, तुसीं सुनिया होना। मैं बेनती कर रहा हाँ, सानू ये नहीं पता भी गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर किन्ने गुरुआं की बाणी, साडे गुरु ने सानू पता होना चाहिए। ये नहीं भी भाई साहब नूं पुछ के दसांगे या प्रचारक नूं पुछ के दसांगे, मुढ़ली जानकारी सानू जरूर होनी चाहिए है। ये मेरी बेनती है, सतगुरु कृपा करन जिन्ने वीर इस साध संगत सारे काफले दे अंदर शामिल ने ते गुरु महाराज की कृपा दे पात्र बने हुए ने, महाराज कृपा करे आपसी प्यार इतवाग बनया रवे। ते कबीर साहब जी का जिहड़ा सलोक है ना, कबीर जैसी उपजी पेड़ ते तैसी निभै ओढ़ वाली गल जीवन के अंदर जिहड़ी ना वो बनी रवे। सफलता सतगुरु बख्शिश करन, ये गुरु चरना के अंदर अरदास है जी। भुल्लां चुकां दी खिमा जी। सारी संगत का धन्नवाद, गुरु महाराज का धन्नवाद, सारे जिन्ने भी ग्रंथी सिंह ने वीर सारियां दा बहुत बहुत धन्नवाद। ते खास तौर पर भाई कल्याण सिंह जी जिन्हां ने जोर ला के साध संगत ड्यूटी डवाई, उन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद है। तुहाडे दर्शन करन दा सुभागा समा जिहड़ा प्राप्त होया ते कुछ बचन गुरु कृपा नाल तुहाडे नाल सांझे कर सकिया, क्योंकि अमृत वेले दी जाग अमृत वेला कीता है, आराम भी करना है, फिर सेवा भी है। भुल्लां चुकां दी खिमा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।